بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا، اور یہ کہانی بھی میری زندگی کا ایسا ہی باب ہے جس پر کبھی کبھی میں یقین کر کے بھی یقین نہیں کر پاتا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنی زندگی میں ایک ایسے رشتے کو شامل کیا جو شاید سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ رشتہ میری زندگی میں آیا سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ مجھ پر سے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھا جسے جاننے کے بعد میری زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ میری شادی کی رات میرے لیے قیامت بن گئی، کیونکہ اس رات مجھ پر ایسے راز کھلے کہ میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ کبھی کبھی ہمارا ماضی ایسی تلخی رکھتا ہے کہ اگر وہ تلخی ہمارے حال میں شامل ہو جائے تو زندگی میں کڑواہٹ گھل جاتی ہے۔ میرا نام منیر ہے، اور میری یہ کہانی آپ پر ایسے راز کھولے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کبھی کبھی ہم خود غرضی اور انا پرستی میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں ہی سب کچھ برباد کر بیٹھتے ہیں، اور اس کا خمیازہ ہمیں کبھی نہ کبھی بھگتنا پڑتا ہے۔ دسمبر کے دن تھے اور سردی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ یہ شادیوں کا سیزن تھا اور میں اپنے آفس میں بیٹھا حساب کتاب میں مصروف تھا کہ ایک عورت میرے آفس میں چلی آئی اور آتے ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں ایک دم گھبرا گیا اور کہا، اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ اٹھو میرے قدموں سے اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے گارڈ کو سختی سے کہا تھا کہ اس وقت کسی کو اندر نہ آنے دیں، لیکن پتہ نہیں وہ کیسے اندر آ گئی تھی۔ آفس کے باہر کھڑے گارڈ اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے، صاحب جی ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ ہم سے نظر بچا کر اندر گھس آئی ہے۔ میں نے گارڈز کو اشارہ کیا کہ کوئی بات نہیں، وہ واپس اپنے کام پر چلے جائیں، اور خود اس عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ عورت میری اماں کی عمر کی تھی اور اسے اس طرح روتا دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس مجبوری نے اسے یہاں لا بٹھایا تھا۔ میں نے اسے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سامنے کرسی پر بٹھا دیا اور کہا کہ اب مجھے بتاؤ اماں، کیوں میرے قدموں میں بیٹھی رو رہی ہو؟ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ سے کچھ پیسوں کا تقاضا کرے گی، لیکن اس نے آنسوؤں بھری نظر سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کیا کروں صاحب جی، حالات انسان کو بہت مجبور کر دیتے ہیں، اور خاص کر بیٹیوں کی ماؤں کو۔ میری بیٹی کی جمعے کو شادی ہے اور بڑی مشکل سے میں نے ساری زندگی لگا کر کچھ پیسے جمع کیے ہیں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں شادی کے لیے کوئی بہتر شامیانہ لگوا سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو سے پونچھ لیا اور پھر نم لہجے میں کہنے لگے، صاحب جی بیوہ عورت ہوں، میری بچی صرف 2 سال کی تھی جب اس کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ساری زندگی دھکے کھائے ہیں، برا وقت آئے تو اپنے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں آخر کہاں سے اتنے پیسے لا سکتی ہوں کہ شاندار طریقے سے بیٹی کو رخصت کروں؟ مگر میری بیٹی کے سسرال والے چاہتے ہیں کہ خوب دھوم دھام سے شادی ہو اور بہترین شامیانہ لگے۔ لڑکا بہت اچھا ہے اور خاندان بھی دیکھا بھالا ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میری بچی کی شادی یہیں ہو اور کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے، لیکن آج کل کے ڈیزائن والے مہنگے شامیانے میری اوقات سے باہر ہیں۔ آپ میری مدد کریں، میری یتیم بچی پر اپنی مہربانی کریں اور کم پیسوں میں ہمیں اچھا شامیانہ لگا دیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ میری بچی کی زندگی سنور جائے گی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ ایک ماں کی آنکھوں کا دکھ دیکھ کر میرا دل نرم پڑ گیا اور میں نے کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، میں بہترین شامیانہ لگوا دوں گا۔ وہ جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے کچھ پیسے کھول کر مجھے دینے لگی۔ وہ چند ہزار کے بوسیدہ سے نوٹ تھے جو شاید اس کی زندگی بھر کی پونجی تھی۔ میں نے اسے وہ پیسے واپس کر دیے اور کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک یتیم بچی کی شادی میں حصہ ڈالنا تو بہت ہی ثواب کی بات ہے۔ میری بات پر اس عورت کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ یقیناً تم ایک بہت نیک باپ کی اولاد ہو۔ آج کے دور میں کون کسی کے کام آتا ہے، اور تم تو مجھے جانتے بھی نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی میری نظروں میں اپنے باپ کا چہرہ چلا آیا۔ میرے ابا کے انتقال کو کافی برس بیت چکے تھے، لیکن وہ واقعی بہت رحم دل اور خدا ترس انسان تھے، اور یہ رحم دلی مجھے انہی سے وراثت میں ملی تھی۔ اگر میری جگہ ابا ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ میں نے اس عورت سے وعدہ کر لیا کہ میں وقت پر بہت بہترین شامیانہ لگواؤں گا۔ اس کے جاتے ہی مینیجر مجھ سے کہنے لگا، آپ کہاں اس عورت کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ یہ عورتیں ایسی ہی چکنی چپڑی باتیں کرتی ہیں، لیکن اصل میں ان کی حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔
मैनेजर की बात सुनकर मुझे दुख पहुंचा और मैंने उसे समझाया कि कुछ चीज़ें इंसान को अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए भी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा नफ़ा और नुकसान को ही मद्देनज़र रखा जाए। अगर इसने झूठ कहा है तो ये इसका ईमान है, लेकिन अगर मैं इसकी मदद नहीं करूँगा तो ये मेरी तरबियत पर धब्बा होगा। मेरे अब्बा ने मुझे हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी का दर्स दिया है। और फिर जुमे के रोज़ मैं खुद सुबह ही सुबह उस औरत के घर के बाहर पहुंच गया और गली में ही खड़े होकर शामियाने लगवाने लगा। ज़ोहर की नमाज के बाद बारात को आना था। मैंने नमाज से पहले पहले ही सारा काम मुकम्मल करवाया और एक आखिरी नज़र डाली तो काम बिल्कुल बेहतरीन हुआ था। मैंने घर का दरवाज़ा बजाकर उस औरत को बाहर बुलाया ताकि वो शामियाने को देख ले। वो तो खुशी से निहाल हो गई और मेरा हाथ पकड़कर चूम लिया। जिस तरह वो मुझे दुआएं दे रही थी, मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। मैंने उस पर ऐसा भी कोई बड़ा एहसान नहीं किया था, लेकिन वो तो ऐसे पेश आ रही थी जैसे मैंने अपना सर काट कर रख दिया हो। उसने मुझे खुसूसन कहा कि मैं नमाज जुमा के बाद शादी में शिरकत के लिए ज़रूर आऊँ, उन्हें बहुत खुशी होगी। मैं शादी वगैरह में बहुत ही कम शरीक होता था, लेकिन उस औरत की मोहब्बत और खुलूस देखकर इनकार न कर सका। मैं जो कुछ भी कर रहा था वो सवाब की नीयत से कर रहा था और इसीलिए नमाज के बाद मैं शादी में शरीक होने के लिए पहुंच गया। बारात आ चुकी थी और दुल्हन को स्टेज पर लाया जाने लगा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो कोई 17-18 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी। मैंने ऐसा हसीन चेहरा आज तक नहीं देखा था। उसकी गोरी चिट्टी रंगत और बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे पर नुमायां थी। सुर्ख उरूसी लिबास में वो कयामत ढा रही थी और उसे देखने के बाद मैं पलके झपकाना भूल गया था। मैंने अपनी जिंदगी के 25-26 सालों में आज तक ऐसी मासूम सूरत और हसीन लड़की नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। उसके चेहरे पर मेकअप नाम की कोई चीज नहीं थी और वो सादगी में ही गजब ढा रही थी। पता नहीं क्यों उसे देखकर दिल में एक हूक सी उठी थी कि अगर ये मेरी दुल्हन बनती तो क्या ही बात होती। मैं ऐसा तो हसीन चेहरा तलाश कर रहा था और शायद वही कबूलियत का लम्हा था। अचानक ही शादी में कोई हलचल सी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़के वालों और लड़की वालों में कोई बदमजगी हो गई हो। धीमी धीमी भिनभिनाहटें मेरे कानों में पड़ रही थीं। लड़के वाले कह रहे थे कि आपने तो हमसे सच्चाई ही छुपाई है, हमें क्या पता था कि आपकी बेटी ऐसी होगी। वो लोग अजीब उलझी ऐसी बातें कर रहे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि दरअसल हुआ क्या है। और इससे पहले कि मैं मामले को पूरी तरह समझ पाता, उस लड़की की बारात वापस लौट गई थी और वो लड़की स्टेज पर बैठी ज़ारो कतार रोने लगी थी। उसकी माँ का हाल तो ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। जितने मुंह उतनी बातें, हर कोई अपने हिसाब से ही कोई ना कोई बात कह रहा था। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद लड़के वाले लालची थे और जहेज के सामान को लेकर ही कोई बात हुई थी। जो भी था, वो माँ बेटी मुंह छुपाए रो रहे थे और ये तमाशा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए मैंने आगे बढ़कर उस औरत से कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर वो रोती हुई औरत हक्का बक्का रह गई और हैरानी से मेरी शक्ल देखकर कहने लगी, बेटा तुम तो हमें जानते भी नहीं हो, तो फिर शादी जैसा फैसला कैसे कर सकते हो? तुमने तो पहले ही हम पर बहुत एहसान किया है, हम तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे? मैंने कहा, अम्मा आप मुझसे कम अज कम ऐसे गैरों की तरह बात ना करें। जो कुछ मुझे जानना था मैंने जान लिया, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप अभी काजी को बुलाएं, मैं निकाह के लिए राजी हूँ। वो औरत घबराकर पूछने लगी कि तुम क्या जान गए हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, यही कि आपकी बेटी मेरी किस्मत में लिखी हुई है। मेरी बात सुनकर उस औरत को इत्मीनान हो गया और उस औरत के चेहरे पर तो जैसे खुशी की लहर ही दौड़ गई। उसने अपनी बेटी को जाकर कान में कुछ कहा तो उसकी बेटी रोते रोते चुप हो गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत समोए मुझे घूरने लगी। वहां मौजूद हर कोई मेरे इस फैसले पर मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा था। इतने में मेरा पुराना मुलाजिम करीब आया, उस तक भी ये बात पहुंच गई थी। वो आहिस्ता से कहने लगा, साहब मैंने सुना है कि आप इस लड़की से शादी करने वाले हैं। इस लड़की से शादी करने की गलती ना करना, वरना। मैंने सख्ती से अपने मुलाजिम को टोक दिया और कहा कि तुम भी दुनिया वालों की तरह खाली तमाशा देखो। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि कैसे एक यतीम और बेसहारा लड़की इतने मेहमानों के दरमियान तमाशा बन गई है? अगर आज इसकी शादी ना हुई तो शायद वो जिंदगी भर अपनी माँ की दहलीज पर ही बैठी रह जाएगी और मैं इस जुल्म में शामिल नहीं हो सकता। मैं इस यतीम और बेसहारा लड़की को मुआशरे में इज्जत दिलाना चाहता हूँ और यही मेरा मकसद है। मेरा अंदाज इतना दो टोक था कि मेरा मुलाजिम डर कर पीछे हट गया और फिर उसने मुझसे कुछ न कहा।
लड़की की माँ काजी को ले आई थी और हम दोनों का निकाह हो गया था। वहां मौजूद लोगों में चहमगोइयां जारी थीं। हर कोई जानना चाहता था कि मैं कौन हूं जिसने अचानक ही शादी का फैसला किया है, लेकिन मैं किसी को भी जवाब दे नहीं था। इसलिए निकाह के फौरन बाद मैंने उस लड़की का हाथ थामा जिसका नाम फौजिया था और उसे रुखसत करवा कर घर ले आया। कुछ देर पहले जो दुआ हसरत बनकर मेरे दिल में थी वो अब कबूलियत का दर्जा पा चुकी थी और फौजिया शरई तौर पर मेरे निकाह में थी और अब मैं उसे अपने घर ले आया था। मैं इस शादी पर दिल ही दिल में बहुत खुश था। अलबत्ता मुझे ये यकीन था कि मेरी माँ मेरे इस फैसले पर ज़रूर खफा होगी, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था और मैंने इस तरह शादी करके उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। जैसे ही मैं फौजिया को लेकर घर में दाखिल हुआ और अपनी माँ को ये कहकर मिलवाया कि फौजिया मेरी बीवी है और मैंने कुछ वजूहात की बिना पर अचानक ही इससे शादी की है, तो मेरी माँ आंखें फाड़ कर फौजिया को देखने लगी और हकलाते हुए कहने लगी कि ये लड़की तुम्हारी बीवी है। ऐसा लग रहा था जैसे अम्मा ने कोई भूत देख लिया हो। फिर अचानक ही मुंह छुपाकर अपने कमरे में भाग गई। अम्मा का रद्द अमल इतना शदीद था कि मैं घबरा गया था। मैंने फौजिया से कहा कि तुम सामने मेरे कमरे में जाओ, मैं अम्मा के पास होकर आता हूँ। अम्मा सालों से मेरे सर पर सहरा सजाने के ख्वाब देख रही थी और मैंने पल भर में अम्मा के सारे ख्वाब तोड़ दिए थे और शायद यही वजह थी कि अम्मा ने इस तरह का रिएक्शन दिया था। जैसे ही मैं अम्मा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उनका दरवाज़ा अंदर से लॉक था और अम्मा के रोने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं अपने आप में ही शर्मिंदा हो गया था। मैंने अपनी माँ का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया था, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं अम्मा को जल्दी सारे हालात बता दूंगा और अम्मा भी समझ जाएगी कि मैंने किस मजबूरी में ये निकाह किया है। काफ़ी देर तक मैं दरवाज़ा बजाता रहा, लेकिन मेरी माँ ने दरवाज़ा न खोला और मैं थका हारा अपने कमरे में चला आया। मैं कमरे में पहुंचा तो मेरी बीवी दीवार के साथ खड़ी थी और फिर मेरी बीवी फौजिया ने अचानक ही एक ऐसी बात कही कि मेरा सारा जिस्म कांप उठा और मुझे लगा कि किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। दीवार के पास मेरे अब्बा की तस्वीर के साथ लगकर खड़ी थी। उसकी नज़र मेरे अब्बा पर जमी हुई थी। वो बार बार उस तस्वीर पर हाथ फेरती जा रही थी और फिर जैसे ही उसने मुझे देखा तो रोते हुए कहने लगी, ये तुम्हारे कौन है? कहीं ये तुम्हारे बाप तो नहीं? मैंने कहा, हाँ ये मेरे अब्बा हैं और कुछ अर्सा पहले इनका इंतकाल हो गया है। ये सुनकर वो दीवार के साथ ही लग कर बैठ गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। बहुत मुश्किल से मैंने उसे संभाला तो उसने मुझे एक ऐसी हकीकत आश्कार की कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो रोते हुए कहने लगी कि मेरे अब्बा का उस वक्त इंतकाल हुआ जब मैं सिर्फ 2 साल की थी। मेरी बेवा माँ को मेरे ददयाल वालों ने धक्के देकर निकाल दिया और मजबूरन मैं और मेरी माँ मेरे मामू के घर लौट आए। मामू ने खुले दिल से हम दोनों का इस्तकबाल किया और पूरी खुशी और मोहब्बत से हमें अपने घर में जगह दी, लेकिन मामी ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। मामी को हमारा वजूद खटकने लगा था। मैं उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी और मुझे तो किसी भी चीज़ की समझ नहीं थी, लेकिन अम्मा बताती हैं कि मामी ने हम पर जिंदगी तंग करती थी। खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ लेकर भी हम तरसने लगे थे। हमारी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर हो गई थी। और फिर एक दिन मामू की गैर मौजूदगी में मामी ने हमें धक्के देकर घर से निकाल दिया और कहा कि हम अब दोबारा उनकी दहलीज पर कदम भी न रखें। वो अपने शौहर की मेहनत की कमाई हम पर नहीं लौटा सकती। ये बात अम्मा के दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो गई। मामी ने उन्हें उन्हीं के भाई से अलग होने का कह दिया था और अम्मा मुझे लेकर दर दर की ठोकरें खाने लगी। न रहने का कोई ठिकाना था और ना ही एक वक्त का खाना। मजबूरन अम्मा एक शादी हाल के बाहर जाकर बैठ गई ताकि खाने के लिए चंद लुक़्मे तो मिल सके। और वहीं पर अम्मा की मुलाकात निगार बेगम से हुई, जो औरतों का एक ग्रुप चलाया करती थी। वो शादियों में नाच गाने का काम करती थी। उन्होंने जब अम्मा की हालत देखी तो अम्मा को पेशकश की कि अम्मा भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाए और शादियों में नाच गाने का काम करे। वो अम्मा को रहने के लिए कमरा भी देने को तैयार थी। भूख प्यास ने अम्मा के सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी थी और अम्मा को लगा कि किसी दरिंदे का शिकार होने से अच्छा है कि निगार बेगम की पनाह में चले जाएं। उस दिन के बाद से अम्मा ने शादियों में नाचने का काम शुरू किया और सारे ग्रुप के साथ शादी में नाचने के लिए जाती और मुझे घर पर ही छोड़ जाती। जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही घिसट रही थी। कभी कभी अम्मा को अपने भाई की बहुत याद सताती थी। 1-2 दफ़ा अम्मा मामी से मिलने के लिए उनके घर गई थी ताकि उनके मामू से मुलाकात हो सके, लेकिन मामी ने हर दफ़ा अम्मा को धक्के देकर निकाला था। साल पर साल गुजरते चले गए और हम निगार बेगम के सहारे ज़िंदगी गुजारते रहे। और जब निगार बेगम का इंतकाल हुआ तो सारा काम ख़त्म हो गया
निगार बेगम ने मरते मरते अपना घर अम्मा के नाम कर दिया था और यही एक छत हमारे पास रह गई थी। मैं जवान हो चुकी थी, इसीलिए अम्मा ने शादी में नाचने का काम तर्क किया और लोगों के घरों में झाड़ू का काम शुरू कर दिया। हमारे हालात ज़्यादा बेहतर ना हो सके थे, लेकिन अब हम इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। और फिर जब अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो अम्मा ने सोचा कि वो पहले मुझे इज्जत के साथ रुखसत कर देंगी ताकि मेरी फ़िक्र से आज़ाद हो जाएं। अम्मा ने अपना माजी बहुत मुश्किल से छुपाया और कुछ इज्जतदार लोगों में मेरा रिश्ता कर दिया। अम्मा को लगा था कि माजी कभी नहीं खुलेगा और कोई ये नहीं जान पाएगा कि अम्मा शादियों में नाचने का काम करती थी। लेकिन ये महज अम्मा की खुशफहमी थी, क्योंकि जब बारात हमारे दरवाजे तक पहुंची तो न जाने किसने उन लोगों के कान में अम्मा की हकीकत बयान कर दी और वो बारात वापस लेकर चले गए। मैं और अम्मा अपनी किस्मत को रो रहे थे, क्योंकि हालात ने हमें इस कदर मजबूर कर दिया था कि हम किसी से अपनी परेशानी भी बयान नहीं कर सकते थे। और फिर ऐसे में आप किसी फरिश्ते की तरह आकर खड़े हो गए और बिना आपके बारे में कुछ भी जाने अम्मा ने शादी का फैसला कर लिया। वो तो पहले ही आपसे बहुत मुतासिर थी। अम्मा ने स्टेज पर मेरे कान में कहा, ये लड़का मुझे बिल्कुल तुम्हारे मामू जैसा लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है जैसे खुदा ने मुझे दोबारा इस लड़के की तुम्हारे मामू की सूरत में एक सहारा बनाकर भेज दिया है। मुझे यकीन है कि ये तुम्हें खुश रखेगा। अम्मा की बात पर मैं भी मुतमईन हो गई और आपसे शादी कर ली। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अम्मा का दिल किस बात की गवाही दे रहा था। फौजिया रोते हुए कहने लगी कि ये तस्वीर मेरे मामू की है, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मामू की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती रही हैं। फौजिया की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे तो यही नहीं मालूम था कि मेरी कोई फूफी भी है। मेरी अम्मा भी जिस तरह फौजिया को देखकर मुंह छुपाकर भागी थी, यकीनन वो सच ही कह रही थी। मैंने फौजिया का हाथ पकड़ा और अम्मा के कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाने के बाद अम्मा ने दरवाज़ा खोला और फौजिया को देखकर शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। अम्मा फौजिया को पहली ही नज़र में पहचान गई थी, क्योंकि फौजिया हूबहू अपनी माँ की शबी रखती थी। और फिर जब मैंने उनको फौजिया का नाम बताया तो उन्हें यकीन हो गया कि यही उनकी भतीजी है। अम्मा ने फौजिया के आगे हाथ जोड़ दिए और माफ़ी मांगते हुए कहने लगी कि मैंने ये सोचकर तुम लोगों को घर से निकाला था कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, लेकिन तुम लोग क्या गए। तुम्हारे मामू को चैन नहीं आया। वो हर करवट पर तुम लोगों को याद करते थे और ये रोग उन्हें ऐसा लगा कि वो बिस्तर से ही लग गए। उन्हें अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा था कि मैंने तुम लोगों को घर से निकाला है और इसीलिए आखिरी वक्त तक तुम्हारे मामू ने मुझसे बात तक न की और कब खामोशी से इस दुनिया से चले गए मुझे पता भी न चला। मेरे दिल में ये कसक रह गई कि मैंने अपने शौहर से उनके रिश्तेदार छीनकर अपना घर उजाड़ दिया है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया और मुझे इसकी सज़ा मिल चुकी है। मेरा शौहर जब इस दुनिया से गया तो वो मुझसे राज़ी नहीं था। मेरा ज़मीर मुझे चैन नहीं लेने देता। अम्मा रोते हुए फौजिया के कदमों में बैठ गई। मेरी भी आंखें भीगने लगी थीं। मैं अब जान पाया था कि क्यों अब्बा अम्मा से बात नहीं करते थे। अम्मा के कहने पर मैं पुप्पो को भी घर ले आया था। अम्मा ने पुप्पो के भी कदमों में गिरकर माफ़ी मांग ली थी। अपने भाई की मौत का सुनकर पुप्पो बहुत रोई थी। उन्होंने अम्मा को माफ़ कर दिया था। फौजिया और मैं एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था कि उस रोज़ मैंने अपने मुलाजिम की बात नहीं सुनी। दरअसल मेरे मुलाजिम को पता चल गया था कि बारात क्यों लौटी है। वो मुझे यही बताना चाहता था कि लड़की का ताल्लुक नाचने वालियों से है। उसे क्या पता था कि वो तो मेरे ही ख़ानदान से है। अगर उस वक्त मैं अपने मुलाजिम की बात सुन लेता तो शायद कभी अपनी फुफ्फो से न मिल पाता। कभी कभी हमें रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा उनसे बिछड़ने के बाद होता है। मेरी माँ को भी ये बात बहुत बाद में समझ आई थी। क्या आपने भी कभी ऐसे लोगों को देखा है जो अना में आकर रिश्तों को सूली चढ़ा देते हैं? दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।